Hello everyone, welcome to the Kumar Academy. I hope you all are fit and fine at your home in this tough time and are doing really well at your home. So in today's video, we are going to discuss about class 9th Science NCERT chapter number 9, that is Force and Laws of Motion. For your kind information, I would like to tell you that we have uploaded 4 parts of the same chapter. Many concepts we have discussed in those videos. If you have not watched those parts of the same chapter, then please go to our channel. All the videos will be available in the playlist. Watch all those videos, part 1, part 2, part 3 in a sequential manner, so that all the basic things that we have discussed till now will be very clear to you. Because if you are learning with the Kumar Academy, then you must follow the sequential order as we are uploading the video. So all the videos have the content in a sequential order as it is given in the book. Either it is designed as per the NCERT syllabus, right? So please watch all those videos. You can watch this video after watching those videos, because if the basics will be clear, only then you can understand the concept of this video, right? So without wasting time, we need to start our today's video, and the topic of today's video is very important, that is momentum. Okay, what is momentum? You must understand, momentum is the word that is only valid for the moving objects, not for the stationary objects. If the thing is in rest, then momentum is not applicable for that object. It will have zero momentum, because the object momentum depends on two things. One is mass and another is velocity. So without delay, let's define the momentum word. Okay, momentum is what? It is the property of the moving object just because of its mass and its velocity. Okay, so what we can say about the momentum? Momentum is nothing, it's a property of the body just because of its velocity and its mass. And it is also defined as the product of mass and the velocity of an object is called as momentum. If you want to give the quantitative idea, then we have the quantitative definition, and these are the qualitative definition we have written. Any quantity in the physics can have two definitions, either the qualitative one, either the quantitative one. Quantitative means the definition which is derived from the formula itself, and qualitative means the definition which is derived on the basis of the property of that quantity, right? So we are having two definition. I have written two definition over here. Whichever is suits to you, you can use that one. जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप study कर सकते हैं. So first I have told you momentum is what? It's a property of a moving object just because of its mass and its velocity. Right now, if you want to define that, then the product of mass and velocity of an object is called as momentum. Okay, and it is denoted by a letter P, and we are having the formula momentum equals to mass into the velocity, mass into the velocity of the moving object. Now P equals to mv. This is the formula of the momentum, and from where we have defined, from where we have taken this definition. This definition is taken from the formula. That's why this kind of definition that we are using on the basis of that formula of the quantity is called as quantitative definition, right? So this is the quantitative definition because it is derived from the formula. What is momentum? Momentum is just represented by a letter called as P. Okay, so we are having P over here, and now mass into velocity. Mass is represented by m, and velocity of the body is represented by the v. So we are having the product of mass into velocity, and the product of mass into velocity is called as momentum. Just very simple, right? फिर से देख लेते हैं क्या है. And momentum is a vector quantity. If we are talking about what kind of quantity it is, so it's a vector quantity because it depends on the velocity and on the mass. So it acts in the direction of motion. If the object is moving from north to south, then the moment of that object will also act from north to south in the same direction as the velocity of the object has the direction, right? And its SI unit we have written over here just like kilogram meter per second. All the units of the quantity are derived from its formula. Right now, what is the formula of momentum? P equals to mv, right? Mass into velocity. So how we can find the unit? Just by multiplying the unit of mass and the unit of velocity. Right now we have written unit of mass is what? Just kilogram we have written. And what is the unit of velocity? Velocity is having mass meter per second. So we can say the unit of the momentum is
kilogram meter per second. Just very simple. All the units of the quantities are derived from the formula itself, right? And sometimes Newton, as you all know, Newton is very popular scientist. He has given too much contribution in the science. Many concept has been discovered by the Newton. So that's why he also used the new term for the momentum just as a quantity of motion. So how Newton defined the momentum as, defined the momentum as, momentum is also called the quantity of motion contained in an object. Okay, what is definition given by the Newton, sir? Newton defined that momentum is the quantity of motion contained in an object. If we are just talking about the object has a larger momentum, that means it has the greater quantity of motion in that, right? So एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को कि क्या होता है मोमेंटम और कैसे कैसे इसको स्टडी कर रहे हैं. बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है और आपको बहुत आराम से पढ़ना है. मोमेंटम कुछ नहीं होता है, बहुत ईजी है आपका टर्म, कंफ्यूज होने की बात नहीं है. मोमेंटम क्या होता है? ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है. कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है और वो किसकी वजह से होती है? जस्ट बिकॉज उसकी वेलोसिटी की वजह से या फिर उसकी मास की वजह से. ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो वेलोसिटी या मास पे डिपेंड करती है या मास या वेलोसिटी की वजह से डेवलप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना है मोमेंटम, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ रहा है जस्ट डिफाइन द मोमेंटम, देन हाउ विल यू डिफाइन? कैसे आप बताएंगे उसको? वेरी सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मोमेंटम इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी. सो मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम मोमेंटम बोलते हैं. और मोमेंटम को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं? पी लेटर से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? पी लेटर से. ठीक है, यहाँ पे एक लेटर हमने यूज़ किया है पी. पी रिप्रेजेंट्स द मोमेंटम ओवर हेयर. यहाँ पे पी जो है मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और मोमेंटम मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल. बहुत सिंपल है ये. और कैसी क्वांटिटी होती है? जब भी हम क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलवेज, जब भी हमने वेलोसिटी की बात की होगी, स्पीड की बात किया होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात की होगी, तो मैंने आपको उसका नेचर जरूर बताया होगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है. जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा, राइट? सो एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. और अगर यूनिट की बात करें हम, तो इसकी यूनिट हम लोग कैसे निकालेंगे? जस्ट सिंपली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. यहाँ पे इसकी यूनिट आ रही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड. किलोग्राम कहाँ से आ रहा है? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है. और जो वेलोसिटी होता है उसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड. तो अगर हम इसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम. बहुत सिंपल है. बाद में न्यूटन सर ने मोमेंटम को थोड़ा सा अलग तरह से डिफाइन किया. उन्होंने एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस किया मोमेंटम के लिए, क्वांटिटी ऑफ मोशन. तो बहुत सारी बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हो आप, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. कोई बहुत टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, मेनली मोमेंटम किसकी वजह से डेवलप होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ मास की वजह से और वेलोसिटी की वजह से. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग बॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी मास और उसकी वेलोसिटी की वजह से एक प्रॉपर्टी डेवलप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. अगर आपको मोमेंटम को डिफाइन करना हो तो बहुत सिंपल है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मोमेंटम. ठीक है, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. और इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? एक नया लेटर यूज़ किया है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से. पी इज एन पी रिप्रेजेंट्स मोमेंटम. ओके, सो P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी. ये फॉर्मूला आ गया, P इक्वल्स टू mv. शॉर्ट फॉर्मूला है, आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, रिकॉल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, जब भी हम किसी क्वांटिटी को डिस्कस करते हैं तो आपको उसका नेचर पता होना चाहिए. द क्वांटिटी इज वेक्टर, आइदर इट इज स्केलर. कैसी क्वांटिटी है वो? स्केलर है या वेक्टर है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है. दैट मीन्स वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है.
जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, उसी डायरेक्शन में मोमेंटम एक्ट करेगा, राइट। एंड इट्स एसआई यूनिट भी निकालनी होती है आपको, तो यूनिट आप बहुत ईजी तरीके से निकाल सकते हो फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। मास की यूनिट पुट कर दीजिए किलोग्राम्स, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, वहाँ से उसकी यूनिट आ जाएगी। बहुत सिंपल है। फिर मैंने आपको बताया मोमेंटम को एक और तरीके से बुक्स में डिफाइन किया गया है। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम वर्ड का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो आप मोमेंटम से डिफाइन कर सकते हो, राइट। सो ये मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है, इसको रिकॉल कर लीजिए। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप वहाँ उसको ज्वाइन करके डिस्कशन फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप कोई भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम उसको एज सुन एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर देंगे, राइट। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। अगर आपको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना अच्छा लगता है तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके अच्छा लगता है नोट डाउन करना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। जस्ट वेट। Okay students, I think you have taken the screenshot of the previous concept, that was momentum. Okay, momentum, its definition, its nature, that means it was vector quantity, and its unit is kilogram meter per second. Just very simple. Now we need to discuss on the second concept. We need to move on the second concept, and the second concept is relation between force and momentum, that how the momentum of a body is related to the force, right. Right now, in the second law of Newton, we have defined the quantitative definition of force. It gives you the value of the force, that how you can calculate the value of a force acting on the body. So F equals to what? Mass into acceleration, right? This is the formula of force which we have derived in the second law of motion. If you have not watched that video of second law, please watch. It will be available somewhere in the playlist. Please watch the video of Newton's second law that we have discussed, and right now after watching you can easily get the concept that F equals to mass into acceleration, force equals to mass into acceleration. Now F equals to we have written in the symbolic form also, F equals to ma. Very popular formula is this, F equals to ma. Each and everybody knows about it. If you are just asking about the second law of Newton, then they will give you the idea that F equals to ma is the second law of motion, okay. It is also known as second law of motion. Now as we know, acceleration equals to change in velocity upon time. So if v u is the initial velocity and v is the final velocity of the object, then how can we find the acceleration? Just by calculating v minus change in the velocity, v minus u upon v is the final velocity of the object, u is the initial velocity, and t is the time taken by the object, right. So acceleration equals to v minus u upon t. This we have discussed in the 8th chapter, and you can say first chapter of physics, that is in motion. So right now we have put the value of acceleration over here, v minus u upon t. Now what we are doing, we are multiplying it. We are multiplying the mass with the velocity, both the velocities. First it will be multiplied with v, and after that it will be multiplied with u, right. Now in the denominator it is coming as t. So this is mv minus mu. As I have told you, the product of mass and velocity is called as momentum. So it's a product of mass and velocity, either it is final velocity and it is the initial velocity. So this is the product of mass and final velocity, and this is the product of mass and initial velocity. So what we can say, the product of mass and final velocity, because mass is constant, mass cannot be initial and final, mass is just only the mass, it is constant. So okay, so mass, the product of mass and final velocity, we can call it final momentum. And right now we have written the mass, product of mass and initial velocity is written as initial momentum, right. So now we have written Pf minus Pi. Pf is final momentum, Pi means initial momentum, okay. And right now this is the change in momentum, that's why I have written change in momentum upon time. And if any change is divided by time, then it is also called as rate. Right now we are having force equals to rate of change of momentum. So this is the relation of the momentum with the force. So the rate of change of momentum happening in the body is equal to the force applied on the object. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जितना आप फोर्स अप्लाई करेंगे
उसमें चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, इसको फिर से देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, हम क्या करने वाले हैं, फोर्स और मोमेंटम के बीच में एक रिलेशन डराइव करने वाले हैं मैथमेटिकली। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये सेकंड लॉ आपने पढ़ा होगा, F इक्वल्स टू मास, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमने क्या किया, F इक्वल्स टू m है, सिम्बॉलिक फॉर्म में यूज़ किया हमने यहाँ पे। नाउ आपको पता होगा कि A की जो वैल्यू होती है, A क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। V क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और T क्या है, टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी, जब भी आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा तो फाइनल वाली वेलोसिटी से इनिशियल वाली वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, आपको चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये A कितना हो गया, V माइनस यू अपॉन टी, राइट। अभी हम क्या कर रहे हैं, A की वैल्यू हमने पुट किया है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया, मास को दोनों वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी क्वांटिटीज ब्रैकेट के इनसाइड थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया mv, ये हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे इसको। ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, मास इंटू वेलोसिटी हो गया, फाइनल वेलोसिटी मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था कि मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मोमेंटम। अगर फाइनल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मास को तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। सो वेरी सिंपल, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया Pf माइनस पी आई, दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम से अगर आप इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन मोमेंटम, तो इसलिए मैंने इसको चेंज इन मोमेंटम लिख दिया है यहाँ पे अपॉन टी। ठीक है, अगर किसी भी चेंज को आप टाइम से डिवाइड करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ, ओके, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में रेट, जो भी मोमेंटम के चेंज होने का रेट है वो फोर्स के इक्वल होता है, राइट। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स वगैरह में पूछते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन करना चाह रहे हैं। एक चीज़ और बताना भूल गया मैं आपको, अगर आपसे कोई पूछ रहा है हाउ द फोर्स इज रिलेटेड, हाउ वी कैन डिफाइन द फोर्स, सो वी कैन ऑल्सो से दैट force is equal to the rate of change of momentum, okay, the rate of change of momentum is also equal to the force applied on an object। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो फोर्स के इक्वल होता है। तो ये भी एक रिलेशन होता है, बहुत सारी बुक्स में आप जाओगे, फाउंडेशन की बुक्स में या आपकी एस.सी. वर्मा में, वो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हैं सेकंड लॉ में। तो हालांकि हमने बेसिक लॉ यूज़ किया था, हमने इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं किया था, मैंने आपको डराइव किया है कि आता कैसे है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके रिवर्स आपको ये डेफिनेशन बना देंगे। तो ऐसा भी बहुत सारी बुक्स में दे रखा होगा कि वो चेंज ऑफ मोमेंटम को यूज़ करके सेकंड लॉ डराइव करेंगे, पर हमने सेकंड लॉ को भी यूज़ करके ये एग्जैक्टली रिलेशन फाइंड आउट किया है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, राइट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay students, I think you have taken the screenshot of the previous concept. Now we need to discuss one sample problem based on the same concept, because if you are studying physics then you must study about the numericals, you must be having good command over the mathematics, only then you will be able to be an expert of physics, right? So we need to discuss some numerical problem that is taken on the same concept, that is based on the similar concept, that is force is equal to rate of change of momentum. Right now what they are saying, an object of mass 100 kg, okay, in this they have written an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in the span of 6 seconds. This is the time given. Calculate the initial and final momentum of the object and also find the magnitude of the force exerted on the object, right? I think the concept of the question is very clear. They have given the mass first, in the first line they have given the mass to you, so you make a note of it, okay, you must make a note of it. So whenever we are reading the numericals then we must take the note of all the things which are given in the question. जब भी आप न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे तो आप उसको डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, लाइन वाइज पढ़ेंगे, एंड यू मस्ट एनालाइज which the quantity is given, you must make a note of that. जो भी क्वांटिटी गिवन होगी आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन करोगे। जैसे यहाँ पे मास गिवन है तो मास नोट डाउन कर लेंगे, कितना गिवन है मास, सिंपल, मास इज इक्वल्स टू जस्ट m,
m is equals to how much, 100 kg. This is the mass of the object. Right now it accelerates from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. That means initial velocity is given to us is 5 and it is changing its velocity to 8, 5 to 8. So initial is 5 and the final velocity is 8 meter per second. So we are writing initial velocity, just wait, initial velocity we are writing. मैंने आपको डायरेक्टली कॉपी नहीं किया है क्वेश्चन, सॉल्यूशन कॉपी करके आपको समझाता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इनिशियल वेलोसिटी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब जो भी क्वांटिटी गिवन होगी उसको नोट डाउन करेंगे। अब फाइनल वेलोसिटी को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। कितना है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी को। कितना है फाइनल वेलोसिटी है आपका, जस्ट वेट, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और कितना गिवन है, ये गिवन है आपको, ठीक है। इनिशियल आपका ये है और फाइनल आपका ये है, ठीक है। मैंने सर्कल किया हुआ है इन चीज़ों को, जो भी मैं गिवन है जिनको नोट डाउन कर रहा हूँ उनको सर्कल भी करते चल रहा हूँ, जिससे आपको पता रहे कि कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। ये टाइम दे रखा है 6 सेकेंड, ठीक है। तो टाइम को भी नोट डाउन करना है, नोट डाउन कीजिए साथ साथ में। टाइम आपका कितना गिवन है, टाइम आपका गिवन है t इक्वल्स टू गिवन है आपका 6 सेकेंड्स। टाइम भी आपका सेकंड्स में गिवन है, सारी वैल्यू जो गिवन है वो SI क्वांटिटी में गिवन है आपको, SI यूनिट्स में गिवन है, सॉरी, ओके। नेक्स्ट इज, अभी हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करना है, साथ साथ में आपको फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करना है और आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है और टाइम गिवन है। तो मैंने आपको बताया था अभी अगर हमें इनिशियल मोमेंटम निकालना है तो बहुत सिंपल है, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे निकाल देंगे। इनिशियल मोमेंटम निकालना है, इसको PI से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका mu। तो मास आपको कितना है, यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं इसको, ठीक है, जस्ट वेट। यहाँ पे हो जाएगा PI इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास 100 kg है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपका, u कितना है 5, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा ये 500, यूनिट क्या आएगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका इनिशियल मोमेंटम आ गया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, PI से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सिंपल है। अभी हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट करने वाले हैं। PF होगा फाइनल मोमेंटम, इसको हम mv से रिप्रेजेंट करेंगे और m कितना है आपका 100 kg, ये हो गया 100 इंटू 8 कितना है, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, 8 हो गया और ये हो जाएगा 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये दोनों वैल्यू हो गई, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। अभी हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। क्या चाहिए, फोर्स। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, फोर्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, PF माइनस PI अपॉन T, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बहुत कॉमन फॉर्मूला है ये, इसको यूज़ करते हैं। F चाहिए आपको, PF कितना है, PF ये है, ये वाली वैल्यू 800 माइनस 500 अपॉन T कितना है आपका 6, पुट कर दीजिए, ये कितना बचेगा 300 अपॉन 6, ठीक है जी। अभी क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, 6 5 जा 30, 0 लगाया तो 50 आ गया। दैट मीन्स हमारा जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है 50, और फोर्स की यूनिट आपको पता है क्या होती है, न्यूटन। मैंने ये फोर्स फाइंड आउट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा हौच पौच अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने कौन से कॉन्सेप्ट बेस्ड के लिया है, अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड हमने क्वेश्चन लिया है, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसने बोला है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, तो मास यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो भी क्वांटिटीज़ होगी न्यूमेरिकल्स में उसको नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। मास गिवन था 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर टू 8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 5 गिवन है आपको, बाद में जो वेलोसिटी हो रही है वो कितनी होगी 8। टाइम कितना गिवन है 6 सेकेंड, वेरी सिंपल, ठीक है, 6 सेकेंड गिवन है ये। आप इसको कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये एस लिखा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए,
6 सेकेंड, ठीक है। और कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम निकालना है आपको, और साथ साथ में आपको निकालना है फोर्स कितना लगेगा ऑब्जेक्ट पे। बहुत सिंपल है, पहले मास को नोट डाउन किया 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी को नोट डाउन किया कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी को नोट डाउन किया कितना है 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 6 सेकेंड। ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में गिवन थी वो नोट डाउन कर ली। नाउ अब चेक करो कि किसका फॉर्मूला क्या कैलकुलेट करना है। इनिशियल मोमेंटम, तो मैंने आपको इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, पी आई इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अगर हम मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे वही किया है, पी आई इक्वल्स टू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितना था 5, मल्टीप्लाई किया 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें क्या चाहिए, फाइनल मोमेंटम चाहिए। तो ये फाइनल मोमेंटम है पी एफ इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, सिंपल है, फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको फाइनल मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे मास 100 kg था, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 8 थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया 800 आ गया, ठीक है। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों जगह सेम यूनिट प्लेस किया है। ये फॉर्मूला होता है फोर्स का, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ से पी एफ हमने कैलकुलेट कर लिया है, पी आई कैलकुलेट कर लिया है, दोनों की वैल्यू पुट करी, टाइम कितना था 6 सेकेंड, ये माइनस कर दिया मैंने 300/6 आएगा, डिवाइड कर दिया 6 5 जो 30 0, एफ इक्वल्स टू 50। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, रिकॉल कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। सो आज के लिए आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आज तो लाइक करिए, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल पे आके तो प्लीज़ उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ पे भी आप अटैच हैं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पे अटैच हैं, आप जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे आप जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे शेयर कीजिए इसको। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को, शेयर करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको ये बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएं। बहुत सारा जितना भी कॉन्टेंट है जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। अभी थोड़ा सा डिले हुआ, बीच में ब्रेकेज आया, एटलीस्ट आई थिंक 1 वीक का थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच थे, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से नहीं अपलोड कर पाया, पर रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी। सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए, अगर आप, जिससे कि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और आज के लिए इतना ही, इतनी देर वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।